اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ پاکستان اب ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہیں۔ آکسفورڈ یونین سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، بے نظیر بھٹو تمام تر مخالفت کے باوجود پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے سرگرم عمل رہیں۔ جمہوریت کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے بے نظیر بھٹو کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی پاکستان کا کل بہتر بنانے کے لیے لگی۔ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وزیراعظم سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج اپوزیشن سے بھی ملاقات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقاتوں سے سیاسی استحکام اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا کی قیادت میں وکلاء کے وفد کی ملاقات۔ عدلیہ کی مجموعی کارکردگی پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس سے وزیراعظم کی ملاقات کو سراہا۔ چیف جسٹس سے ہر ڈویژن بار کے وفد کی بھی ملاقات۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا انصاف تک رسائی کے عزم کا اعادہ۔ ہزارہ ڈویژن کے دور دراز علاقوں کے دورے کا اعلان۔ کہا، بینچ اور بار کی اجتماعی دانش عدالتی نظام کے لیے ناگزیر ہے۔ قانونی برادری کے تعاون کے بغیر مؤثر نظام انصاف ممکن نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے نئی سینیورٹی لسٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ 49 صفحات پر مشتمل آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت درخواست منیر اے ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے دائر کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ 26 نومبر احتجاج میں گرفتار 120 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے تمام ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے 24 سے 27 نومبر کے دوران اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی CCTV فوٹیجز اور زخمیوں کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں الزام لگایا گیا کہ زخمیوں اور جاں بحق کارکنان کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کو جھوٹے مقدمات کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پولی کلینک، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ CDA اسپتال اور DG سیف سٹی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا۔ کہ پاکستان کی دنیا میں عزت پی ٹی آئی والوں کو پریشان کرتی ہے۔ شرپسندوں کو آرمی چیف کا دورہ ہضم نہیں ہو رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اوورسیز پاکستانی کو زر مبادلہ نہ بھیجنے کی کال دی تھی، جسے اوورسیز نے مسترد کر دیا۔ IMF کو خطوط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی نے ملکی سالمیت پر حملہ کیا۔ یہ ٹولہ ملک دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو ملک پر حملہ کیا، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ان کو پاکستان کوئی مانی نہیں رکھتا، پاکستان کے انٹرسٹ کوئی مانی نہیں رکھتے۔ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب نے اکانومی پہ اتنا کام کیا، 1 سال میں ایک ٹیم ورک ہے اور الحمدللہ پاکستان کی اکانومی امپروو کی، یہ بھی بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اور اب ان کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کی عزت ہوئی ہے، پاکستان کی فوج کی وجہ سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کنٹروورشل بنایا جائے۔ یہ آپ کی ریمیٹنسز والی کال عوام نے ریجیکٹ کی ہے، اوورسیز پاکستانیز نے اس کا بھرپور بلکہ الٹ جو ہے اس طرف چلے ہیں کہ آپ نے بوائیکاٹ کرنے کا کہا، ریمیٹنسز میں 32% اضافہ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا، اور آپ کی جو مضمون کوششیں ہیں کہ پاکستان کی ساکھ کو متاثر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ایک سوچ اور ایک نظریے کا نام ہے۔ سوچ اور نظریے کو قید نہیں کیا جا سکتا، جو دل میں رہتا ہے وہ سوچ اور نظریہ ہے۔ وہ شخص جسے بے گناہ قید کیا ہے وہ جلد ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ زندگی کا مقابلہ جیتنے کے لیے اصول، نظریہ اور روایات پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ زندگی کی ہار جیت کھیل کی ہار جیت سے مختلف ہے۔ وہ ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ ابھرے گا، وہ آئے گا۔ آپ نظریے کو قید نہیں کر سکتے۔ سن لو کہ جو دلوں میں ہوتے ہیں، جو نظریے ہوتے ہیں، وہ قید نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں وہ جیتتا ہے جو اپنے اصولوں پہ کھڑا رہتا ہے، جو نظریات پہ کھڑا رہتا ہے۔ زندگی کے مقابلے میں اس کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی۔ یونیورسٹی آف سرگودا اور معروف ملکی کمپنی کے درمیان خوش آب منرل واٹر کو کمرشل اور تجارتی بنیادوں پر مارکیٹ میں متعارف کروانے کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف سرگودا اور ملکی کمپنی 6S
केटरिंग एंड जर्नल ऑर्डर सप्लायर्स के दरमियान मुआहदे की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, असातिज़ा और तलबा शरीक हुए। मुआहदे के मुताबिक 6S केटरिंग एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर्स इस सिलसिले में मुकम्मल तमाम इंतजामी और मॉनिटरिंग के अखराजात बर्दाश्त करेगी। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा, प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमने तमाम कानूनी तकाज़ों को अपनाया। प्रोजेक्ट को कमर्शियल करने और मुआहदे को तकमील तक पहुँचाने के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब की। इस मौके पर 6S केटरिंग एंड जर्नल ऑर्डर सप्लायर्स कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां मोहम्मद साजिद ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का मिनरल वाटर खुश आब एक गैर मामूली अहमियत के हामिल प्रोडक्ट है। आसियान मीडिया वफ्द ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया। वफ्द ने चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान मीडिया के शोबे में बाहमी ताउन को मजबूत बनाना, सकाफती तबादले को फ़रोग देना और पेशावराना रवाबित को मजबूत करना था। आसियान कल्चर डिवीज़न के सीनियर अफसरान नोवेल हैंडलटन और वेद बेल्जियानी ने आसियान की नुमाइंदगी की। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने कहा कि मीडिया सकाफती और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। नोवेल हैंडलटन ने कहा है कि आसियान और पाकिस्तान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन खुश आइंद है। ताउन इलाकाई अमन और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वेद यालबरियानी ने कहा है कि यह प्रोग्राम पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन को फ़रोग देने के लिए एक अहम कदम है। मुलाकात में एग्जीक्यूटिव मेंबर सिकंदर रशीद चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल वकील खान मोहम्मद ताहिर, जनरल डायरेक्टर हैदर ताहिर फारूक तारड़ और कंसल्टेंट मीडिया सादिया भी मौजूद थीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हैदराबाद में वकला और पुलिस के दरमियान एक बार फिर कशीदगी शुरू हो गई। छुट्टियों पर जाने वाले एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फर्रुख लंजार के दोबारा चार्ज लेने पर वकला का फिर हड़ताल का ऐलान। हैदराबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फर्रुख लंजार को तब्दील ना करने तक आज अदालती कार्रवाइयों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। हैदराबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से लेटर जारी कर दिया गया। सदर हाईकोर्ट बार का कहना है कि आज से अदालतों की तालाबंदी की जाएगी। एसएसपी फर्रुख लंजार को ना हटाने जाने तक बाइकआउट जारी रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए जलजले के शदीद झटके। जलजले के झटके सवात, मैंगोरा, मालाकंड, शांगला, बोनेर के गिरदोनवाह में आए। जलजले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले की ज़ेर ज़मीन गहराई 5 किलोमीटर और मरकज सवात था। सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मार्च में कराने पर तलबा के साथ साथ वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। तलबा और वालिदैन का कहना है कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में इम्तहानात कराने के फैसले ने परेशानी से दो चार कर दिया है। तफसीलात के लिए आबिदा खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात रमजानुल मुबारक में कराने का ऐलान, तलबा की बड़ी तादाद आजमाइश का शिकार हो गई, जबकि वालिदैन परेशान हैं। पेपर देना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। कोशिश की जाए कि या तो रोज़े से पहले हो जाए या ईद के बाद कर दें। तो जितने भी सेंटर होते हैं वहाँ बैठने का वालिदैन के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता, तो वो बाहर धूप में खड़े होते हैं। तो लाजमी सी बात है जो वालिदैन साथ जाएंगे वो वालदा वालिद वो धूप में रोजे की हालत में बाहर खड़े खड़े 3-4 घंटे, तो उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। वालिदैन कहते हैं सहर व अफ्तार की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाएगा। कराची के इम्तिहानी सेंटर में लोड शेडिंग भी एक बड़ा मसला है। बच्चे रोजे के साथ गर्मी में कैसे पेपर देंगे? लेकिन क्योंकि रोज़ा होगा तो सुबह आप देख लें फजर से लेकर मगरिब तक जब वो रोज़े में होगा तो उससे सही पढ़ाई नहीं होगी, और मगरिब के बाद भी फिर ज़ाहिरी बात है जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, सारे उन पर रोज़ा भी फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ है, रात को तरावी पढ़ेंगे तो उस तरीके से उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ये पेपर हम देंगे, हमें काफ़ी मुश्किलात है क्योंकि बच्चों का रोज़ा भी होता है, सही है, और इस वजह से आपसे गुजारिश है कि ये पेपर हमारे मुलतवी किए जाएँ। तलबा और वालिदैन ने रमजानुल मुबारक के पेश नज़र महकमे तालीम और स्टीयरिंग कमेटी से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इन अल्फाज को इस्लामाबाद फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टीचर ट्रेनर प्रोफेसर को डिज़ाइन करके साबित कर दिया। 3 डायमेंशनल इस सॉफ्टवेयर की खुसूसियात पर देखेंगे इस्लामाबाद से अरशद शाद की खुसूसी रिपोर्ट। रिपोर्ट का तज्जिया करना हो या मुस्तनद मालूमात दरकार हो, इम्तिहानी पर्चा जात की तैयारी हो या असातिज़ा की तरबियती वर्कशॉप,
नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल इन एकेडमिया एंड ट्रेनिंग प्रोफेसर नेमत कर सकता है हर मुश्किल काम चंद लम्हों में। फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में दुनिया के पहले AI जनरेटेड टीचर ट्रेनर को सिर्फ 3 अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तैयार किया है। AI प्रोफेसर नेमत की ब्रेन डेवलपमेंट करने वाली प्रोफेसर मायरा अली कहती हैं कि ये सॉफ्टवेयर 3 डायमेंशनल है। इससे स्टूडेंट्स, टीचर्स और टीचर ट्रेनर्स तीनों मुस्तफीद हो सकते हैं। वी आर द डेवलपर्स ऑफ प्रोफेसर नेमत। प्रोफेसर नेमत पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड प्रोफेसर है। इट इज़ बेसिकली अ प्राउड मोमेंट फॉर FCE क्योंकि इससे पहले टीचर ट्रेनर फॉर्म में AI प्रोफेसर थ्रू आउट द ग्लोब हमें इस किस्म की कोई एग्जांपल उसकी नहीं मिलती। टेक्निकल मामलत करने वाले शाहजेब कमाल कहते हैं सबसे बड़ा चैलेंज सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली बनाना था। इससे तमाम हिदायत बोलकर दी जाती हैं जो व्यूअर्स के लिए आसान है। आगे बढ़ें और आपको बताएं तारिकीन वतन कश्ती हादसात। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा एक्शन ले लिया। FIA की सिफारिश पर 50,000 से ज़्यादा अफराद के पासपोर्ट्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। 2017 के बाद मुख्तलिफ अदवार में डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट्स की मनसूखी और ब्लैक लिस्ट में डालने की वजह डंकी और गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप पहुँचने वालों की हौसला शिकनी करना है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FIA ने डिपोर्ट होने वालों की फहरिस्तें वज़ारत दाखिला को दी थी और फिर इनके पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट किए गए। हुकूमत की मुल्की तारीख के सबसे बड़े वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तैयारी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को नकद रकम देने की तजवीज़। रमज़ान रिलीफ पैकेज पर वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अमल दरामद का आगाज़ किया जाएगा। 20 अरब रुपए से ज़ायद के रमज़ान रिलीफ पैकेज पर काम तेज़ी से जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के आइंदा इजलास में रिलीफ पैकेज पेश करने की हिदायत। मुतवस्सत तबके को रमज़ान में पैकेज से मुस्तफ़ीद करने के लिए 2 तजावीज़ पर काम जारी। 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी कस देने की तजवीज़। सस्ते रमज़ान बाजारों में बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर 10 से 15% रिलीफ की भी तजवीज़। रिलीफ पैकेज के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी कस देने की तजवीज़ है, ऐसा बताना है ज़राए का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ। अगले 5 साल में बरामदात को $60 बिलियन तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इजलास में माशी तरक्की के लिए टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की हैं कि टैरिफ के नर्ख कम करके निज़ाम को सादा और आम फहम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सनती पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए टैरिफ इस्लाहात ज़रूरी हैं। उन्होंने हिदायत की है कि बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ारत तिजारत के इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 सालों में टैरिफ में बतदरीज कमी की गई है।